Hello everyone, good morning and welcome to the online platform of Drishti IAS. So this is the Drishti learning app on which you are having this live class for UGC NET paper 2, that is political science. And I'm sorry that there was a delay for 10 minutes, I guess so. Yeah, there's a delay for 10 minutes. There were some technical problems as such. The class was delayed by 10 minutes. Okay, so I'm really very sorry for that. So once again, welcome all of you. A very good morning. And myself, I'm Girish Venkatesh. And today we are going to discuss with regard to what? We are going to discuss a new topic because in the last class we completed the constitutional amendments and जो भी important amendments था उन सब को हम लोगों ने complete किया. Am I right? Okay. So today in today's class we are going to talk about the union legislature. That means हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर की बात करेंगे. बट बिफोर दैट आई हैव दिस लाइव चैट गोइंग ऑन. ठीक है, मेरे पास ये लाइव चैट का फैसिलिटी है, आपके पास भी ये लाइव चैट का फैसिलिटी है. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग मी लाइव इन दिस क्लास टुडे, प्लीज यू कैन ग्रीट बाय सेइंग हेलो और हाय. ठीक है, उस अनुसार आप लोग ग्रीट कर सकते हैं हेलो एंड हाय से. ओके, एंड यस, and any problems with any of the topics, please do tell me. Okay, chalo. So today's topic, as I said you, we are going to talk about union legislature. तो जब हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो इन दैट यूनियन लेजिस्लेचर टॉपिक इज यूनियन legislature. And union legislature is nothing else but it is the parliament. Okay? And we all know that in India, the parliament, it is the legislative organ of the union government. जो union government है, उसका legislative organ जो है, that is the parliament, and the parliament of India is the supreme legislative organ. That means India में जो parliament है वो legislative organ of the government है, plus parliament, it is the supreme legislative organ. And we also know that India में जो form of government है, that is India, it adopted a parliamentary form of government. और इसी को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है जो ब्रिटेन का है. सो बिकॉज इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कैन से दैट द पार्लियामेंट, ये हिंदी में उसको संसद कहते हैं, द पार्लियामेंट, इट ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, देन द इंडियन पार्लियामेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा, बट वेरी इंपॉर्टेंटली द प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. जबकि अमेरिका में द प्रेसिडेंट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. And we were happy to adopt the British model of parliament, that is the Westminster model of parliament. ठीक है? Hello Adarsh, good morning. And when we talk about the constitutional provisions, तो constitutional provisions में we should all know that part 5 of the constitution and article 79 to 122 of the Indian Constitution, it deals with the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges and powers of the parliament. So article 79 से 122 जो है वो तुम्हारा पार्लियामेंट के पावर्स, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन,
कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ये सब से तुम्हारा डील करता है. When we talk about the Parliament of India, then we should all know that the first general elections, it took place under the new constitution, and that was in 1951-52. So the first parliament, or you can say the elected parliament that came into existence, वो तुम्हारा April 1952 में था. So April 1952, we can say that the first parliament that came into existence. ठीक है? So let's write things about the parliament. जैसे मैंने आपको बोला कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव organ of the union government. ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. प्लस वी ऑल्सो नो दैट इंडिया adopted the parliamentary form of government. India, it adopted the parliamentary form of government, that is the Westminster model of government. ठीक है. So India, it adopted the parliamentary form of government, that is the Westminster model of government. So the parliament of India occupies an eminent and central position in the Indian democratic political system. ठीक है, Indian democratic political system. Then with regard to the parliament, we can say the constitutional provisions, part 5, आर्टिकल 79 से 122, ठीक है, कंटेन्स organization, composition, duration, privileges, officers, and powers of the parliament. ठीक है. So article 79 से 122, it deals with that. ठीक है.
Got it? So this is what is the parliament about. Introduction. अब अगर हम पार्लियामेंट का टॉपिक वाइज जाते हैं, दैट मीन्स हमें, अच्छा ये भी एक चीज लिख लो, दैट इज द फर्स्ट elected parliament, April 1952. First elected parliament is April 1952. ठीक है? And we all know that the first general elections under the new constitution, it was held from 1950, held during 1951-52. ठीक है? चलो, ठीक है? नाउ लेट्स गो विथ वन बाय वन. अगर हम आर्टिकल 79 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 79 it talks about the constitution of parliament. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये हो गया कि द पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट्स एक द प्रेसिडेंट, दूसरा द लोकसभा और तीसरा द राज्यसभा. So the Parliament of India, it constitutes the President, the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. ठीक है? तो ये हम बोल सकते हैं कि this is what the Parliament constitutes of. ठीक है? And we should know that in America, the president is not the integral part of the parliament. अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है, he is not the integral part of the parliament. Whereas in India, the president is the integral part of the parliament. He is not the member of either of the house of the parliament. He does not sit in the parliament, but still he is the integral part of the parliament. मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया में the president is not a member of either house of the parliament, is not a member of either house of the parliament, nor does the president sit in the parliament. ठीक है? प्रेसिडेंट जो है, he does not sit in the parliament, but still we can say that the president is the integral part of the parliament, and a bill cannot become an act or a law until it gets the assent or the signature
of the president. ठीक है, तो इसीलिए president का ये integral part है. That means the president is not the member of the parliament, nor does he sit in the parliament. But in India, the president is the integral part of the parliament ठीक है, प्रेसिडेंट जो है he is the integral part of the parliament, प्लस हम ये भी बोल सकते हैं a bill becomes a law or act only after the signature of the president. ठीक है, only after the signature of the president. Plus the president, because he is the integral part of the parliament, so the president has the power to summon or prorogue both the houses of the parliament. That means the president can summon or ठीक है, can summon or prorogue both the houses. ठीक है, plus dissolve the Lok Sabha and also dissolve the Lok Sabha and also address both houses. मतलब after every general elections जो first session होता है, first meeting, that is being addressed by the president, and every year the first session, first day, it's been addressed by the president. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि actually Article 79 of the Indian Constitution, it talks about that the parliament, it constitutes of three, that is the president, the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. Now then we come into the president, that is the president, because we have accepted the Westminster model of government. So as a result, the president is an integral part of the parliament. The president, he has the power to summon or prorogue both the houses of the parliament. He can dissolve the Lok Sabha as well as he has the power to address both the houses of the parliament. And at the same time, we can say that no bill can become an act in the house unless it gets the signature of the president. But what about America? अमेरिका में जो मॉडल है वो ये है कि द अमेरिकन प्रेसिडेंट ही इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, सो वी कैन से दैट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रिलाइड मोर on the British pattern rather than the American pattern. As a result, हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारा ब्रिटिश मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, that is the parliamentary form of government, and in that parliamentary form of government, the parliament is the supreme legislative body या supreme legislative organ of the union government. ठीक है, now next comes Article 80. Now, as you all know, that Article 80, and what is this Article 80? It's nothing else but it is the
composition of the Rajya Sabha. Composition of राज्य सभा. पहली बात तो राज्यसभा के बहुत सारे नेम्स हैं. There are lot many names of the Rajya Sabha. First of all, in 1954, the nomenclature with regard to the Council of States that was changed to Rajya Sabha. मतलब 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बदले तुम्हारा राज्यसभा बोला गया. अगर राज्यसभा का अदर नेम्स की बात करोगे तो इट्स ऑल्सो रेफर्ड एज द सेकेंड चेंबर, द हाउस ऑफ एल्डर्स एंड द परमानेंट हाउस और द अपर हाउस. सो इफ आई टॉक अबाउट द राज्यसभा, तो सबसे पहला चीज अगर राज्यसभा के बारे में बात करना है तो यह है कि इन 1954 in 1954 the nomenclature यहाँ पे लिख देते हैं, it will not come here. ठीक है, 1954 the nomenclature of Council of States changed to Rajya Sabha. ठीक है, the nomenclature of state ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स को तुम्हारा राज्यसभा में बोला गया, was changed to राज्यसभा. Then we can talk about the other name. अदर नेम्स में एक है तुम्हारा अपर हाउस, दूसरा तुम्हारा सेकेंड चेंबर, थर्ड it's the permanent house, and fourth it's the house of elders. ठीक है, it's the house of elders. Okay. और एक और चीज, फर्स्ट ठीक है. So please do remember that the first Rajya Sabha, it was convened in 1952. ठीक है, in independent India. Now when we talk about the composition of the Rajya Sabha, तो इस कॉम्पोजिशन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेड्यूल 4 of the Constitution
फोर्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स with allocation of seats in Rajya Sabha for states and union territories। देखो, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करोगे तो देर आर ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज which have been given representation in the Rajya Sabha। One is that with regard to Delhi, National Capital Territory of Delhi. The other one is with regard to Puducherry. And the third one is that of Jammu and Kashmir. ठीक है, बाकी हम बोल सकते हैं the 28 states, they have representation in the Rajya Sabha. Now when I say the 28 states having the representation in the Rajya Sabha, then the representation of the 28 states in the Rajya Sabha, it all depends upon, मतलब ये सारा कुछ डिपेंड करता है with respect to their population, कि what is their population, according to that तुम्हारा ये 28 states का जो representation है। ठीक है, got it? But let's go into the details। डिटेल में अगर जाओगे तो कॉम्पोजिशन में हम बोल सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड हियर एक्चुअल स्ट्रेंथ, या एक्चुअल, या आप इसको प्रेजेंट बोल लो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250। अब इस 250 में से इलेक्टेड भी हैं एंड नॉमिनेटेड भी है। इलेक्टेड जो है वो 238 है, नॉमिनेटेड जो है वो 12 है। नाउ हु इज नॉमिनेटिंग? इट्स द प्रेसिडेंट हु इज नॉमिनेटिंग, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, पर्सन्स विथ स्पेशल नॉलेज on literature, art, social science, स्पेशल जिनका है, पर्सन विथ आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस, साइंस एंड ऑल, इसको people with special knowledge बोला जाता है, and they are all nominated by the president। but when it comes to the elected, तो elected तो मैंने आपको बोला ना, states होंगे या तो union territories होंगे, तो states है और union territories है। union territories में actually 8 होने चाहिए और स्टेट्स में कितना होगा? 230। ठीक है, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हम लोग बात करते हैं।
बट प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली जो टोटल है दैट्स 245। इनमें से अब वही वाली बात आ गई, नॉमिनेटेड 12 और इलेक्टेड तुम्हारा कितना हो गया, 245 में से 12 गया तो 233। अब इस 233 में से वी कैन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज 4, स्टेट्स 229। जम्मू एंड कश्मीर के जो 4 सीट्स है दे आर वेकेंट। ठीक है, 4 सीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे आर वेकेंट। ठीक है, गॉट इट। 4 सीट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो वेकेंट है, इसीलिए यहां पे तुम्हारा ये चीज है। गॉट इट। सो दिस इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ, यू कैन से, द राज्यसभा। नोट इट डाउन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता देना। Anyone who has any problem? Adarsh, आदि मिश्रा, ठीक है, और भी लोग हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, दिस इज द, देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, उसमें से इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है। दोज हु आर नॉमिनेटेड, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट we should know that they are the persons who are with special knowledge on literature, art, social science and science, and elected are 238, but they are elected from the states and union territories। और यहां पे 230 तुम्हारा स्टेट से है और 8 तुम्हारा यूनियन टेरिटरीज से है। और यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, मैं वह भी बताता हूं। और एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, एक्चुअल स्ट्रेंथ इज 245, एंड आउट ऑफ दैट 245, ठीक है, 12 आर नॉमिनेटेड एंड 233 आर इलेक्टेड। ठीक है, अब वो 233 में से 229 जो हैं दे आर फ्रॉम द, व्हाट टू से, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से तुम्हारा 4 हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज देयर। नाउ बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज दैट हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। कौन से यूनियन टेरिटरीज है जिनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है? द फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर 4, सेकेंड वन इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 3, and the third one is Puducherry, or Puducherry is 1. ठीक है, now there are states
which have only one representation. ऐसे 8 states है. ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. That means states that have one representation in Rajya Sabha. स्टेट्स जिनका वन रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में. इट्स द मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम. मतलब मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वो वन रिप्रेजेंटेशन के साथ. मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. ठीक है, राइट इट डाउन. ठीक है, देन इफ यू गो विथ अदर स्टेट्स, then Uttar Pradesh has the maximum representation, 31. Maximum. उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, दैट इज 31. एंड आफ्टर दैट Maharashtra has 19. Tamil Nadu 18. लिखते जाओ. तमिलनाडु 18. बिहार 16. आंध्र प्रदेश it's 11. राजस्थान तुम्हारा 10 है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा कर्नाटका
12 वेस्ट बंगाल इट्स 16 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 16 स्टेट्स हो गए ठीक है ओके देन मध्य प्रदेश 11 गुजरात 11 उड़ीसा 10 आसाम ठीक है इतने स्टेट्स और बचे तो आसाम इज 7 आसाम जो है वो 7 है एक छत्तीसगढ़ भी है छत्तीसगढ़ 5 है झारखंड 6 है ठीक है हिमाचल प्रदेश 3 हरियाणा 5 तेलंगाना भी है 7 ठीक है उत्तराखंड 3 है उत्तराखंड 3 पंजाब 7 और लास्ट जो आपका बच गया दैट इज केरला इट्स 9 राइट इट डाउन सारे स्टेट्स तो 8 स्टेट्स है जिनके 1 में है अगर मैक्सिमम की बात करो तो इट्स यूपी ठीक है यूपी इज एट 1 नंबर यूपी देन फॉलोड बाय महाराष्ट्र फॉलोड बाय तमिलनाडु फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल ठीक है एंड बिहार ठीक है वेस्ट बंगाल एंड बिहार देन फॉलोड बाय कर्नाटका देन आंध्र प्रदेश 11 है मध्य प्रदेश और गुजरात भी 11 है ठीक है उड़ीसा राजस्थान ये सब 10 है तो इन दिस वे यू शुड नो द राज्यसभा सीट्स ठीक है राज्यसभा के सीट्स के बारे में ये जानना चाहिए क्लियर है नाउ व्हेन आई से दैट हाउ द स्टेट्स are represented in the Rajya Sabha, then one should be very clear that the
representation of states in Rajya Sabha. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा की जब बात करते हो तो पहला पॉइंट ये आता है कि द मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा by the elected members of the state legislative assembly. That means जिन states में state legislative councils हैं, now in those states I can say you that there is no, matlab the members of the state legislative council वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते. बट जब बात आता है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, then the representation of the states in the Rajya Sabha, they are elected, that is the members are elected to the Rajya Sabha by the elected members of that particular state legislative assembly. और जो elections होते हैं, ठीक है, second point is elections are in accordance with proportional representation. Elections जो है, it is in accordance with proportional representation with single transferable vote system. ठीक है, elections जो है in accordance with proportional representation and that too with the help of single transferable vote system. ठीक है, तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि the representation of states in the Rajya Sabha, they vary from state to state. ठीक है, third point, representation of states in Rajya Sabha vary from state to state. क्योंकि स्टेट टू स्टेट जो पॉपुलेशन है वो तुम्हारा डिफर कर रहा है. ठीक है, स्टेट टू स्टेट जो पॉपुलेशन है वो तुम्हारा डिफर कर रहा है. तो इससे हमें यह पता चलता है कि राज्यसभा में जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं, दैट टू विद सिंगल ट्रांस, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस. लिख लो भाई, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस. हो गया? ठीक है, सो दिस इज द इलेक्शंस. मतलब पहली बात मैंने कहा कि जो भी जीतते हैं दे आर इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब दे आर इलेक्टेड बाय द
members of the elected members of the state legislative assembly, elected members of the state legislative assembly plus in accordance with the proportional representation और वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इसका मतलब ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, ठीक है, और ये जो है इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है. Now, one more thing. What about the representation of the union territories? अब यूनियन टेरिटरीज में भी देयर इज एन इलेक्टोरल कॉलेज एंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सब कुछ होता है. बट यूनियन टेरिटरीज बिकॉज उनका स्मॉल रिप्रेजेंटेशन होता है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो रिप्रेजेंटेशन है यूनियन टेरिटरीज का, they are also elected by the elected members of their state of their legislative assemblies. ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स का मैं आपको बता ही दिया था. ठीक है, इसके अलावा व्हेन आई से राज्यसभा इट्स अ परमानेंट बॉडी. जब मैं राज्यसभा को परमानेंट बॉडी बोलता हूं, ठीक है, कि राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, परमानेंट बॉडी का मतलब क्या हो गया? परमानेंट बॉडी का मतलब ये हो गया कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड. राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता. और यह भी बात है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स retire after every 2 years. 1/3 of the members ये रिटायर करते हैं आफ्टर एवरी 2 years. और इसमें जो टेन्योर है राज्यसभा का वो 6 years का है. द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा इट्स 6 years. ठीक है, और ये जो टेन्योर 6 years है, इट वॉज डिसाइडेड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. और एक और चीज याद रखना, जो फर्स्ट बैच ऑफ मेंबर्स हु रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा, इट वॉज ऑन लॉटरी बेसिस. ठीक है, फर्स्ट बैच टू रिटायर फ्रॉम राज्यसभा ऑन लॉटरी बेसिस, लॉटरी बेसिस में हुआ. ठीक है, फर्स्ट बैच. इज इट क्लियर? हाँ जी, सब कुछ क्लियर है? प्लीज बता दो. ठीक है, so the tenure of 6 years, it was decided by the Representation of People's Act 1951, and the Rajya Sabha, it's a permanent body, it can never be dissolved.
and the reason for it is that 1/3 of its members, they retire after every 2 years. ठीक है, let's go to the next part, that is Article 249. Now, these are the special powers with regard to the Rajya Sabha. अब आर्टिकल 249 है, उसी तरह आर्टिकल 312 है. So we can say that special powers of Rajya Sabha. अगर हम स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा की बात करते हैं तो सबसे पहला जो है वो है आर्टिकल 249. अब ये आर्टिकल 249 क्या है भाई? आर्टिकल 249 इज नथिंग एल्स बट इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट with respect to matter in the state list. Power of the parliament to legislate with respect to matter in the state list. अब हम सबको पता है कि whenever there is a matter with regard to the state list, the parliament, it's given the permission to legislate on the subject when such a matter या when such a resolution is passed in the Rajya Sabha by 2/3 majority. और जब राज्यसभा में वो 2/3 majority में पास हो जाता है, then the parliament has the power to legislate the matter which is under the state list. But such a matter will become a law or an act for 1 year. And if it has to be extended, then the same procedure has to be performed. That means first वो रेजोल्यूशन को तुम्हारा राज्यसभा में लाना पड़ेगा, राज्यसभा में वो 2/3 मेजॉरिटी से जब पास होगा, then only the parliament will have the power to legislate with respect to matter in the state list. तो इसमें क्या है? It's the power of the parliament to legislate power of the parliament to legislate with respect to matter in the state list. With respect to matter in the state list. और इसमें बोला जाता है कि द राज्यसभा gives the permission to the parliament. The Rajya Sabha gives the permission to the parliament to legislate on the subjects, ठीक है, to legislate on the subjects of state list through a resolution passed by 2/3 majority. Through a resolution passed by 2/3 majority. और बोला जाता है such a law or act prevails only for 1 year. ठीक है, such a law जो है it will prevail for only 1 year.
and if you want to extend the duration, ठीक है, to extend the duration, the whole process has to be repeated. The whole process has to be repeated. So this is one of the special powers of the Rajya Sabha. ठीक है, राज्य सभा का ये एक स्पेशल पावर है. And this is special. Why? Because it is something which is with regard to the state list, matters in the state list. Next power Rajya Sabha का जो है, it's with regard to the All India Service. That is Article 312. और 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है. ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या बात है कि राज्यसभा इट कैन अलाउ द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी. दैट मीन्स it's the Rajya Sabha which allows the parliament to create a new all India service by a resolution passed by 2/3 majority in Rajya Sabha. By a resolution passed by 2/3 majority in Rajya Sabha. और आपको पता रहना चाहिए प्रेजेंटली 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है. Presently, there are 3 all India services. 3 all India services है. एक तुम्हारा IAS का है, दूसरा इट्स IPS और तीसरा इट्स IFS. IAS को ICS भी बोल सकते हो, IAS, IPS and IFS. So these are the 3 all India services which are there at present. हाँ जी, कोई डाउट किसी को? प्लीज टेल मी. काइंडली टेल मी ऑन द लाइव चैट अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल व्हाट वी आर डूइंग और नॉट? ठीक है. और एक और स्पेशल पावर है राज्यसभा का, एंड दैट इज विथ रिगार्ड टू आर्टिकल 67, एंड दिस इज विथ रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. सो वी कैन से दैट द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इट कैन बी ब्रॉट इन द राज्यसभा. Resolution for the removal of the vice president can be brought in the Rajya Sabha. ठीक है. जो भी प्रोसीजर है विथ रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट दैट कैन बी ब्रॉट इन द राज्य सभा. क्लियर है?
ठीक है. So Article 67, Article 312 and Article 249. Now these are the special powers with regard to the Rajya Sabha. ठीक है. ये आपका राज्यसभा के बारे में जो है वो तुम्हारा अभी तक का जो इनिशियल जानकारी है वो अभी हम खत्म करते हैं. सो 80 आर्टिकल की बात थी विच टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राज्यसभा, दैट इज द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और ये जो एलोकेशन है इट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. सो तुम्हारा जो भी सीट्स है जो एलोकेटेड हुआ है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंगली बोला जाता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ और प्रेजेंट स्ट्रेंथ था. ठीक है. इसके अलावा वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द यूनियन टेरिटरीज विच आर गिवन रिप्रेजेंटेशन. आउट ऑफ द 8 union territories, only 3 union territories are given representation. Rest of the union territories का 0 रिप्रेजेंटेशन है. और वो 0 रिप्रेजेंटेशन किस लिए है? वो 0 रिप्रेजेंटेशन इसलिए है वाई? बिकॉज इट सेज दैट जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं दे हैव अ वेरी लेस पॉपुलेशन, इसीलिए उनका 0 रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज देयर. सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज दैट इज दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के पास है. ठीक है. देन कम्स द स्पेशल पावर्स, मैंने आपको बता दिया. और उसके बाद अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 81. Now this article 81, it's with regard to the composition of the Lok Sabha. Composition of the Lok Sabha. आप सबको पता रहना चाहिए कि ये जो लोकसभा है, ठीक है, earlier it was referred as the House of the People. ठीक है. So it was in 1954. ठीक है. अब हम लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं. तो in 1954 the nomenclature of House of People, it changed to Lok Sabha. दूसरी बात, also called lower house, first chamber, people's house, और फोर्थ हम बोल सकते हैं इट्स द टेम्पररी हाउस. ठीक है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा, तो ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा है इट्स मतलब उसमें भी करंट स्ट्रेंथ और कॉम्पोजिशन में हम बोल सकते हैं कि द कंट्री is divided into territorial
कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कंट्री जो है वो पूरा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, और ठीक है, और ईच स्टेट को नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड है। ईच स्टेट इज एलोकेटेड नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, और जो भी इलेक्शन होता है फॉर दिस, ठीक है, वो बेसिकली इट टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। दैट मीन्स जो भी कंस्टिट्यूएंसीज है वो, मतलब एक कंट्री को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। देन ईच स्टेट इट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ सीट्स है उसको इस तरीके से रखा जाता है सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर एंड द पॉपुलेशन इज द सेम इन ऑल द सीट्स। मतलब ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स सच दैट the ratio of the number of seats and the population remains the same for all states. बट जिन स्टेट्स का पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, दैट इज 60 लाख से कम है, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बोला यह जाता है कि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन वो लेस देन तुम्हारा 60 लाख है और 6 मिलियन है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट एप्लीकेबल। पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा का अगर मेंबरशिप की बात करोगे तो 545 इसका एक्चुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है, बट प्रेजेंटली इट्स समथिंग डिफरेंट। अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करोगे, इसको ऐसे कर लेते हैं जैसे पहले किए थे, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ और करंट स्ट्रेंथ। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है दैट्स 550, 550। अब इस 550 में से स्टेट्स भी हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट्स इट्स 530 और यूनियन टेरिटरीज ये 20 है। लिख लो, ये यूनियन टेरिटरीज जो है वो तुम्हारा 20 है। बट जो करंट स्ट्रेंथ है वो 543 है, जिसमें हम स्टेट्स का 530 है, बट यूनियन टेरिटरीज इट्स
नॉट 20, इट्स 13। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जो है वो 20 नहीं है, वो 13 है। अब यहां पे रिमेंबर इट, ये नोट कर लो कि इन लोकसभा अर्लियर 2 members, that is Anglo-Indians, nominated by president. 2 members, that is Anglo-Indians, को nominate किया जाता था by president. ओरिजिनली ये नॉमिनेशन को बोला गया कि इट विल बी ऑपरेटिव टिल 1960s, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2020 बाय द 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2020। But what happened in 2019? 104th Constitutional Amendment Act आया, जिससे कि ये जो नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस है इसको तुम्हारा स्टॉप कर दिया गया। तो प्लीज रिमेंबर, ये जो एंग्लो इंडियंस की जो कहानी है उसको यहां पे थोड़ा देख लो कि नॉमिनेशन ऑफ Anglo-Indians by the president कितना था? 2। ठीक है, और बोला गया ओरिजिनली it was to be in operative. Originally, it was to continue till 1960. ठीक है, ओरिजिनली इसको कंटिन्यू करना था 1960 तक। बट 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 extended it till 2020 और फिर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2019 में। it stopped the nomination of 2 Anglo-Indians to लोक सभा। तो अब ये चीज तुम्हारा स्टॉप हो चुका है। ठीक है, क्लियर? अब ये चीज आपका बेसिकली पूरे तरीके से स्टॉप हो चुका है। गॉट इट? अब बताओ, सबको क्लियर है? नाउ अगर स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, अगर स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो there are states which have 1 seat as representative in the Lok Sabha. 3 states hai, that is states with 1 representative, states जिसमें 1 representative है। ठीक है, 2 लोकसभा, एक है सिक्किम, दूसरा इट इज नागालैंड,
एंड तीसरा इट्स मिजोरम। ये 3 स्टेट्स है जिनका 1 रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देन स्टेट्स with 2 states with 2 representative in Lok Sabha, इसमें 5 states हैं। एक है गोवा, दूसरा मेघालय, गोवा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, एंड लास्ट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है इट हैज 48, देन वेस्ट बंगाल it's 42, then Bihar it's 40, then Tamil Nadu it's 39। ठीक है, लिखते चलो। ठीक है, तमिलनाडु 39 हो गया। फिर उसके बाद 6th आई कैन से मध्य प्रदेश इट्स 25, नहीं 25 गुजरात है, मध्य प्रदेश सॉरी इट्स 29। ठीक है, देन गुजरात इट्स 25। ठीक है, देन Andhra Pradesh it's 25। ठीक है, देन आंध्र प्रदेश के बाद वी कैन से कर्नाटका, ये भी तुम्हारा ज़्यादा ही है, 25 से ज़्यादा ही होगा कर्नाटका। कर्नाटका इज 29।
कर्नाटका आई शुड नॉट राइट हियर, नहीं तो ऑर्डर बिगड़ जाएगा. Let me write it here. Karnataka. It's 28, sorry. And ठीक है, फिर उसके बाद तेलंगाना, नहीं, तेलंगाना से पहले केरला विल कम. केरला इज 20. ठीक है, रिमेंबर इट. केरला जो है दैट इज 20, बट बिफोर केरला देर इज शुड बी उड़ीसा जो 21 है. केरला 20, then Telangana, it's 17. ठीक है, Telangana it's 17. Then Punjab it's 13. Then Jharkhand जो है वो 14 है. Jharkhand 14. Assam is also 14. Then Chhattisgarh, it's 11. छत्तीसगढ़ 11 है. ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 5 है, हिमाचल प्रदेश 4 है. तो कितने हो गए? 18 स्टेट्स यहाँ होंगे. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. और कौन सा स्टेट बच गया भाई? एक हरियाणा बच गया. That is 10. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Any state which is now missing, please tell me. कोई ऐसा स्टेट जो मिस कर रहा हो? राजस्थान नहीं लिखा ना? राजस्थान इट्स 20. राजस्थान भी 20 है. अब अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी इन लोकसभा, यूटी का रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा लोकसभा में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 7 का रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इट हैज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7.
ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर 4 का रिप्रेजेंटेशन है, तो 7 and 4 हाउ मच, 11, ठीक है। और बाकी जो हैं दैट इज चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, दमन एंड दीव, ये सब का 1 रिप्रेजेंटेशन, दे ऑल हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1, इवन लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का भी 1 है, सॉरी लद्दाख नहीं लिखा मैंने, लद्दाख ऑल्सो हैज 1, और जम्मू एंड कश्मीर का 5 है। लद्दाख हैज 1, that means rest of the union territories they have 1 representation, ठीक है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, एंड तुम्हारा लद्दाख, okay. So this is what is there with regard to the representation when it comes to the Lok Sabha. अब लोक सभा में we all know that the election to the Lok Sabha, it's what? Direct. Election to the Lok Sabha जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो मेंबर्स हैं are directly elected by people, और इसमें जो सिस्टम है इट्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट system, that is the candidate who gets majority votes is the winner. जैसे लोकसभा में 50% + 1 मिलना चाहिए, ठीक है, लोकसभा में जो कोटा है वो 50 पर वोट कोटा जो है वो 50% + 1 मिलना चाहिए। बट यहां पे इट्स नॉट दैट, इट्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और यहां पे ये बोला जाता है कि इन दिस द कैंडिडेट्स देयर नेम्स आर देयर इन द बैलेट बॉक्स, और उस बैलेट पेपर में उनका नाम होता है या ईवीएम मशीन्स में नाम होता है, एंड वी हैव टू कास्ट ओनली 1 वोट। जबकि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो भी सीट्स होता है इट्स नॉट बाय बैलेट पेपर, रादर वहां पे आपको जाकर अपना प्रेफरेंसेस देना होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, वो थोड़ा सा बाद में हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बट इतना आपको याद रखना है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है एंड द कैंडिडेट हु गेट्स द मेजॉरिटी वोट इज द विनर, एंड एवरी सिटीजन इन द कंट्री हु इज 18 and above, they all participate in the elections to the Lok Sabha, ठीक है। तो वो लोग सब इलेक्शंस टू द लोकसभा में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। And even the members of the Lok Sabha who are coming from the union territory,
they are also chosen by the direct elections. ठीक है, और अगर ड्यूरेशन की बात करोगे, if you talk about the duration of लोक सभा, तो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है दैट्स अ टेम्पोररी बॉडी, इट्स अ टेम्पोररी बॉडी, बट एक्चुअली इसका ड्यूरेशन 5 years है, बट इट कैन बी dissolved before the stipulated term of 5 years. That means अगर Council of Ministers they lose the confidence of the Lok Sabha, they lose the majority in the Lok Sabha, तब तुम्हारा हाउस डिसॉल्व हो जाता है, and the house it's dissolved by the president, and even during national emergency it can be extended by 1 year, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था. ठीक है, सो फॉर टुडे वी कैन एंड अप द सेशन हियर. कल हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलेंगे. आज थोड़ा सा पॉजेस रहा क्लासेस में. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल. ठीक है, एक तो थोड़ा सा जो ये स्क्रीन है उससे थोड़ा आईज में इफेक्ट हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, तो जिसके कारण थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे. बट एनी हाउ, जो भी आज मैंने आपको बताया है आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा. ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ रिगार्ड टू एनी ऑफ दिस थिंग देन प्लीज डू टेल मी. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ इन अभी तक जो पढ़ाया हूं, प्लीज डू टेल मी. ओके, सो काइंडली लेट मी नो ऑल दोज हु आर देयर ऑनलाइन, क्या आज जो भी हमने क्लास में किया आपको क्या वो चीज समझ में आया? आई एम वेटिंग फॉर योर रिएक्शन. ठीक है, आपका कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं. प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स. ठीक है, सो we'll meet tomorrow and we'll further continue with the discussion. तो कल जो रहेगा it will be very important class because we are going to talk about the delimitation commission. ठीक है, जो कि सेटअप किया गया. अब तक 4 delimitation commissions हुए हैं, 52, 62, 77 and 2002 में. So according to those delimitation commissions कैसे कैसे तुम्हारा रीएडजस्टमेंट या रीएलोकेशंस ऑफ सीट्स किया गया है, वो सब के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे. एंड देन वी विल मूव इनटू द फर्दर आर्टिकल्स ऑफ द तुम्हारा पार्लियामेंट. ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.